presentation is complete, then we need to have a Q&A. Yes. So that's how we're going to conduct it. And Fazan, please do. स्टार्टिंग अच्छा पहले ये कंफर्म कर लें कि आप लोगों का स्क्रीन शेयर हो रही है और आवाज आ रही है, प्लीज ये कंफर्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों में से कोई कंफर्म कर सकता है आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है? सर आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू। Assalamu alaikum. We commence proceedings of the corporate briefing session of Synergico PK Limited for the year 2024-25 with the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Before commencing the proceeding of the corporate briefing session of Synergico PK Limited for the year 2024-25, this is to inform you all that Vice Chairman Mr. Usama Qureshi, Chief Executive Officer Mr. Amir Abbasi, Director Mr. Umar Abbasi, Chief Financial Officer Mr. Zafar Shahab, myself Majid Muqtadir, Company Secretary, and other senior management of the company being present here. We call this corporate briefing session of Synergico PK Limited and welcome you all here. Now I request finance team to start the session by presenting the slides on the company's recent financial performance and future outlook. Thank you very much. फैजान फारूक है and मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रेजेंटेशन मिल गई होगी कि स्टॉक में हमने शेयर कर दी स्टॉक शेयर की वेबसाइट में। तो हम लोग क्विकली रन थ्रू कर देते हैं प्रेजेंटेशन ताकि हमें क्वेश्चन आंसर का ज्यादा टाइम मिल जाए। This is the business overview. As you all aware, company के चार business segments हैं mainly, which includes oil shipping business. We have two refineries and one is the oil marketing business. In the oil shipping business, we can handle VLCC and Suezmax tankers more than 130,000 metric tons with the annual capacity of 10 million metric tons. This is the third point of entry in Pakistan, along with Fotco and Port Qasim, Kemari. And approximately 17% of the country's crude oil were imported at SPM during last financial year. It can handle both import of crude oil and fuel products. Then we have two oil refineries, one with 36,000 barrels and other is 120,000 barrels per day. ORC 1 was commissioned in 2004, while ORC 2 was commissioned in 2015. Both our refineries are linked with the isomerization unit having capacity of 12,500 barrels per day. Then we have our own oil marketing business with 470 plus retail outlets all over Pakistan. We have our own storages at Kemari, Mahmood Port and Shikarpur, along with multiple hospitality arrangements at various locations in Pakistan. This is the value chain of our business operations. As you can see that after the crude oil vessels linked with single point mooring, then it is then we have storages, pipelines, it refined and then it went to the end consumers through our own browser systems. This is the country's oil infrastructure. As you can see that in the south of Pakistan, there are three oil refineries, Synergico, National Refinery and PRL. In the mid-country, we have Parco, and in the north, we have one refinery, Atak Refinery. And this chart shows the SPM, Kemari and Port Qasim, all three ports are situated in the south of Pakistan. And we have our own storage at Shikarpur, Mahmood Port and Kemari. This chart is showing country's oil consumption, excluding fuel oil.
Although the country oil consumption excluding fuel oil has increased 10% as compared to last year, that is 2024, but it is right now it is 17% at a lower side than what it was in 2022. These are the correct spreads in 2024 and 2025. As we can see that the correct spreads of diesel and PMG was significantly higher in financial year 2024 as compared to correct spreads in financial year 2025. And this is one of the reasons we will explain you in the next slide, that the company made an EBITDA of rupees 9.5 billion rupees in current financial year as compared to the EBITDA of 17.7 billion rupees in financial year 2024. This is the synopsis of our own oil refining business. The company, as explained previously, the company has two oil refineries, and we are operating since last 30 years and contributing towards the energy demand of the country. The last point is very crucial because for the first time in Pakistan, our company is importing crude oil from United States. The two cargoes is planned now, one in by the end of October and one in November. So this will also a historical shift because previously our country was mainly relied on the Middle Eastern crude suppliers. Oil marketing business. As explained previously, we have our own oil marketing business with the retail name of Vaiko, having 470 plus retail outlets. Although the last financial year 2025 was very challenging for our oil marketing business, and the challenges includes volatile oil prices, oil smuggling, and intensified competition, which leads to huge discounts. But despite of those challenges, our oil marketing business recorded a significant increase, that is 34% increase in the sales volume. And in the last financial year, the revenue of our oil marketing business also increased to PKR 116 billion rupees as compared to PKR 104 billion in financial year 2024. This is the province-wise and category-wise breakup of the retail outlets, 470 retail outlets of our company, which shows that our main, more than 80% retail outlets are situated in Sindh and Punjab. While in the category side, you can see that most of our retail outlets are situated on highways. Then we have 172 outlets in city and 79 retail outlets on the north side, the agri-mid side. This is the oil marketing company's market share in financial year as compared to financial year 2024. In both the financial years, the company maintained its market position, that is 6th rank. Lubricant business. Our oil marketing business also includes the lubricant business. We offer automotive and industrial lubricants via 3 channels: high street, industrial, and retail. And we are earning approximately average 15% margin on the cost of products.
financial highlights. This is the financial snapshot of financial year 2025 as compared to financial year 2024. As we can see that the gross sales of the company has increased by 31% and the net revenues increased by 23% respectively. The company made gross profit of rupees 5 billion rupees as compared to 12 billion rupees, primarily due to significant refinery margins financial year 2024 as compared to 2025. The finance cost has reduced to almost half, primarily due to reduction in the CIBOR rates from 22% to 11% in financial year 2025. Despite all the challenges, the company managed to make rupees 9.5 billion approximately EBITDA as compared to 17.7 billion in financial year 2024. This chart is showing the trend of the CIBOR rates from last 2 years. As you can see that the CIBOR rates has declined significantly from 22% in financial year 24 to 11% in financial year 2025. This is a ratio analysis of last 5 years. As we can see that the company maintained the current ratio at 0.7 in 2025 as compared to 2024. Likewise, debt equity ratio also maintained in both the financial years. Gross profit ratio has decreased primarily due to the reasons I explained previously, and EBITDA margin to sales ratio also come down to 3.18%. This is the snapshot of the corporate social responsibility of the company. The company engaged in various things. This is just the recap of the Pakistan Oil Refinery Policy. The amended oil refinery policy notified by the government in 2024, and these are the key points of the amended oil refinery policy. The implementation of this policy is pending and long outstanding due to two main key issues. One is the sales tax exemption of petroleum products, and other one is the petroleum levy, implication of petroleum levy and climate support levy on funded oil. The company is engaged in various discussions with the various government levels along with other oil refineries, and we hope that both these issues will resolve soon so that company can proceed further for signing of the upgrade agreement. This is the upgrade project as we explained previously as well. The company is already working on the upgrade project, and we hope that after once this project is complete, the production of high-speed diesel and premium motor gasoline will be increased significantly, and the production of fuel oil will be decreased significantly. And after this project, all our products will be Euro 5 compliant, inshallah. Now we are open for question and answers, and one by one करके चल लेते हैं किसी क्वेश्चन को. असद कुरैशी साहब, जी असद साहब, अनम्यूट हम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरे 3 सवाल हैं. असद साहब, जी जी असद कुरैशी from Taurus Securities. So my first question is, recently the Sindh government has imposed a development cease on import of cargoes. However, SIFC has mediated and allowed to clear cargoes until October end. So what do you think this development to impact on crude imports, and what will be the impact on gross refinery margins? देखें,
आपका पहले सवाल एक करके सवाल ले लेते हैं, फिर मेरे साथ वो बेटर। This is my first question. पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये काफी दिन से, काफी सालों से ये इशू चल रहा था और एक कोर्ट में भी स्टे ऑर्डर्स हुए थे इसके ऊपर। कोर्ट का फिर एक ऑर्डर आ गया कि कागज जो है वो रिलीज होंगे अपॉन इशुएंस ऑफ बैंक गारंटीज। ये कोर्ट का ऑर्डर है, जिसकी बात ऑयल कंपनीज ने अप्रोच किया टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि बैंक गारंटी की कॉस्ट है, बैंक गारंटी में कैपिटल स्टक हो जाता है, तो दिस कैन नॉट बी लाइक फॉलोड। जिसके बाद उन्होंने एक अंडरटेकिंग की, ऊपर कार्गोस क्लियर करने शुरू कर दिए। पिछले 2 हफ्ते में ये इशू वापस रेज हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उन्होंने बैंक गारंटी वापस मांगी। सो इसकी वजह से थोड़े हमें तो प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वी आर बेस्ड इन बलूचिस्तान। हमारे ऊपर तो इशू डिफरेंट है। हमारी प्रोविंस के अंदर तो सियासत इम्प्लीमेंट हुआ है को पिछले 4-5 साल से, और हमारे कोई 3 to 4 बिलियन रुपीस कैश स्टक है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास, जो कि टैरिफ में हमें नहीं मिला है बिकॉज टैरिफ इज रेगुलेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। सो उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है SIFC से और बाकी जगहों से, बट ये फॉर द टाइम बीइंग 15 डेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है अंडरटेकिंग के ऊपर, और इन 15 डेज में वी आर एक्सपेक्टिंग कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर लें। सो अभी इस वक्त फिलहाल कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है कि प्रोडक्ट के कार्गोज ना आ रहे हों या क्रूड के कार्गोज ना आ रहे, तो ऐसा कुछ नहीं। Okay. My second question is, can you tell me the GRM of first quarter FY26 and FY25? FY26 के रिजल्ट्स अभी तक तो अनाउंस नहीं हुए, तो उसके बाद ही हम इसके बता सकेंगे। एंड लास्ट ईयर जो हमारे GRMs थे वो अराउंड $5। Okay. So my last question is, how do you deal with the recent imposition of levies on furnace oil? Do you have an alternate plan or some other thing? So basically फ्यूल ऑयल की अगर आपने देखा, मतलब अभी जो फर्स्ट क्वार्टर में ही हमने जो लास्ट ईयर हमारा मिक्स था कि 40 to 45% हम लोकली सेल करते थे फ्यूल ऑयल, और इस साल almost 90%, बल्कि even 95%, it is being exported and 5% is sold locally. So we have started exporting. I mean, we have increased our exports. That's the only thing. Obviously, local की price better होती है as compared to the export price. But again, this is part of the business, so we have to carry on with that. Okay, thank you. किसी और का क्वेश्चन है या? वालेकुम सलाम। सर few questions है सर मेरे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बता दें अपना और कहाँ। सर अकील फ्रॉम एबीपी फंड्स। सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने पिछले ब्रीफिंग में डीमर्जर का कहा था कि 5 कंपनियों में डिवाइड होगा या 6 कंपनीज में डिवाइड होगा, और सिंध हाई कोर्ट में आपका कोई केस वगैरह भी डीमर्जर का चल रहा था, उसके बारे में क्या अपडेट है? सिंध हाई कोर्ट में उसकी जो पिटीशन थी वो फाइल हो चुकी है, और थोड़ा सा सिंध हाई कोर्ट में काफी सारी स्कीम्स जो है वो क्यू में हैं और वो टाइम लग रहा है। तो नेक्स्ट हियरिंग उसकी 27th को है, सो वी एक्सपेक्ट कि इस हियरिंग में कुछ प्रोग्रेस हो। वी आर फॉलोइंग इट अप क्वाइट अ बिट, और हमने अर्जेंसी एप्लीकेशन भी फाइल की है उसके अंदर। सर ये टोटल 5 कंपनियों में डिवाइड होगा डीमर्जर या 6 कंपनीज में होगा? 6। सर 6 फिर कैसे है सर? आपने अभी प्रेजेंटेशन में 4 ही तो बताई हैं, 2 रिफाइनरी, एक SPM और एक OMCs। ये हमने जो बताया मेन हमारे जो प्राइमरी बिजनेस सेगमेंट्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया। बाकी में जैसे एक हमारी जो कंपनी है केमिकल प्रोजेक्ट बिजनेस, जो हमारा एक एरोमेटिक प्लांट है वो अभी नॉन ऑपरेशनल है, तो उसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। इसी तरह एक हमारी जो हमारा SPM है वो हमारी एक सेपरेट एंटिटी है। SBM2 की बात हो रही है। So we have plans to install one more SBM. SBM is with us. We have to execute that project. So वो दो कंपनीज जो है प्रोजेक्ट फेज की कंपनी।
तो सर एक 4 ऑपरेशनल में 2 प्रोजेक्ट फेज है। ओके, तो सर ये सिनर्जिको ने जो इंपोर्ट किया है, WTI इंपोर्ट किया होगा बेसिकली, तो सर ये कितने नंबर ऑफ डेज में ये कराची आपको SPM के थ्रू मिल जाएगा सेकेंडली? और सर इसके अंदर जब ऑयल प्राइस का इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा तो आप लोग इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं, जबकि या तो इसको आपने हैच करवाया हुआ है, क्या है सिस्टम आपका? देखें, हमारी पॉलिसी फॉर द लास्ट 2 years इज वेरी क्लियर। एक तो हम प्राइस हेज करते हैं और ये पिछले 2 साल से कर रहे हैं, और हम इंडिया द फर्स्ट रिफाइनरी ऑलवेज टू टेक सच इनिशिएटिव्स, देन बाकी लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो हम तो पिछले 2 साल से हेजिंग करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट एनी सच लॉसेस। जहां तक आपने बात की सेलिंग टाइम, इसका तकरीबन 35 to 40 डेज का सेलिंग टाइम होता है। उमर, am I right? 35 to 40 days का सेलिंग टाइम है। फर्स्ट कार्गो इज रीचिंग आउट probably coming Tuesday. Second wala is coming on 15th November, and third one is coming in January. So वो हमने जनवरी के लिए लॉक किया। सर ये ईच कार्गो कितने टन का है? 1 मिलियन बैरल का है, तकरीबन 1,25,000 टन का। ओके। और सर इसके अंदर में जो डिफरेंस है WTI का या अरब लाइट का, जो भी आपका डिफरेंस होगा तकरीबन $7-8 का होता है, तो इससे आपका फ्रेट कॉस्ट जो है एडिशनल आप पे कर रहे होंगे इसकी, तो वो उसको कंपनसेट कर देता है और GRM में पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, GRM ऑब्वियसली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जब भी हमने दिसंबर में, हमें नहीं दिख रहा था इसलिए हमने दिसंबर में नहीं लिया। दिसंबर में वी हैव ट्राइड अनदर क्रूड वेस्ट अफ्रीकन, सो वो हमने बुक किया है, वॉली लाइट। एंड फॉर नवंबर, दिसंबर, फॉर अक्टूबर, नवंबर, जनवरी इट वाज better than Arab rates, so that's why we are booked. ओके सर, इसके अलावा फ्रेट की बात कर रहे हैं ना, फ्रेट व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर रिफाइनरीज, हमें हमारी SBM की वजह से हम स्विसमैक्स या 1 मिलियन बैरल्स जो है वो ले पाते हैं वहाँ पे डिस्चार्ज कर पाते हैं। सो दैट्स व्हाई हमारी फ्रेट इकोनॉमिक्स की बाकी रिफाइनरीज से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वी हैव अ बेटर फ्रेट इकोनॉमिक्स अदर रिफाइनरीज। ओके, और सर ये करंट थ्रूपुट सर आपका कितना होगा? 23%, 25% ही होगा अभी? 30-35% है। देखिए, थ्रूपुट के ऊपर, थ्रूपुट बढ़ाना इज नॉट एन इशू, बट थ्रूपुट बढ़ा के उसको प्रॉफिटेबल रखना, उसको टाइमली, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन सेल्स एज वेल। इट्स नॉट जस्ट के थ्रूपुट बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 3 कार्गो लाते हैं महीने में, तो 3 की जगह 6 भी ला सकते हैं, बट उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना, उसको प्रॉपर्ली उसके यहाँ लॉजिस्टिक्स के बहुत मसाइल हैं, या सेल्स के बहुत मसाइल हैं, फ्यूल ऑयल के मसाइल हैं। सो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो ऑप्टिमल हमें लगता है एक थ्रूपुट, वो हम मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू हैव प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस। सर फर्स्ट क्वार्टर के रिफाइनरी के नंबर सर शेयर्स किए थे डिफरेंट लोगों ने, आप लोगों के भी और सारी इंडस्ट्री के, तो कुछ ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस शो की है कि उन्होंने FO की प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है। इवन इन्होंने डीजल की प्रोडक्शन तो इंक्रीज की है, साथ में इन्होंने FO की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज की है। तो आप लोगों का इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, खासतौर पर एक रिफाइनरी का काफ़ी बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आया। एक रिफाइनरी जो नॉर्थ के करीब है, चलो उनके तो इशूज़ हैं कि फील्ड्स वगैरह बंद है बहुत सारी, तो उनकी प्रोडक्शन कम हुई थी, अक्रॉस द बोर्ड 3 मेन प्रोडक्ट में हुई थी। लेकिन जो कराची बेस्ड है एक रिफाइनरी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा FO की प्रोडक्शन को डिक्लाइन कर दिया और डीजल की प्रोडक्शन को साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर दिया। तो सर देखिए, नाम लेके बात कर लेते हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ उसका नाम लेके। APL का, अटक पेट्रोलियम, अटक रिफाइनरी का हमारे साथ कोई कंपैरिजन या किसी और रिफाइनरी के साथ बिल्कुल कंपैरिजन है ही नहीं। उसकी एक रीजन है कि उनको लोकल क्रूड मिलता है, विच इज अ स्वीटर क्रूड विच हैज लेस फ्यूल ऑयल, एंड उनको ना कोई डॉलर एक्सपोजर है ना कोई, बल्कि उनको फायदा ही हो जाता है जब बाकियों को डिप्रिसिएट हो रहे हो, बाकियों को करेंसी डिवैल्यूएशन का डिसएडवांटेज होता है तो उनको एडवांटेज होता है। सो दिस इज एन एनॉमली। आप अगर PRL NRL की बात करें यहाँ पे, तो NRL की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है बिकॉज उनके पास बेस ऑयल बनाते हैं लुब्रिकेंट का। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट आया होगा। सर जहाँ तक जी
सर एनआरएल की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने एफओ की प्रोडक्शन को फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 29,000 टन सिर्फ बनाए, जबकि 53,000 पिछले साल में बनाए थे सर। लेकिन उन्होंने कोई 61% से डीजल की प्रोडक्शन 2,10,000 टन बढ़ाई, जबकि पहले 1,30,000 टन थी फर्स्ट क्वार्टर FY25 में। तो ऐसी क्या रेसिपी होगी जिसके अंदर में डीजल इतनी बड़े नंबर से बढ़ जाए और एफओ इतने बड़े नंबर से कम हो जाए? सर ऐसा रिफाइनरी में कुछ नहीं हो सकता। अगर क्रूड की टाइप उन्होंने चेंज किया, रिफाइनरी में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि रिफाइनरी उसी क्रूड में अगर आप दास या मरबन या कोई भी अरब ग्रेड क्रूड ला रहे हैं तो उसमें जो यील्ड डीजल की है उसको फर्दर आप 1-2%, 3% तो अपनी एफिशिएंसी या रिफाइनरी के प्लांट ऑपरेशन से आप गेन कर सकते हैं, बट नॉट दिस मच नंबर, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। But what I can tell about our refinery that's why ये जो खास तौर पे लेवी लगी है और ये जो फ्यूल ऑयल के ऊपर इतना इम्पैक्ट आया टैक्सेस का, इसकी वजह से हमने आप इस क्वार्टर में या इस फिस्कल करंट फिस्कल ईयर के अंदर वी आर बाइंग मोर लाइटर फ्यूल्स, जिसकी फ्यूल ऑयल प्रोडक्शन जो है वो अरब ग्रेड से थोड़ी कम हो और दे आर लो सल्फर फ्रूट्स जिसकी प्राइसिंग थोड़ी बेटर मिल जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। सही है सर। सर आपके डेटा के हिसाब से आ रहा है 82,000 आपने प्रोड्यूस किए फर्स्ट क्वार्टर FY26 में, जबकि पिछले साल इस वक्त के अंदर 1,06,000 टन प्रोड्यूस किए थे एफओ, तो डिक्लाइन है आपका 22.5% का। लास्ट ईयर वो हेवी क्रूड था, थोड़ा हेवी क्रूड चला, क्रूड टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा एक अभी वो क्या नंबर्स आएंगे तो थोड़ा थ्रूपुट का भी इशू था। ठीक है माय थ्रूपुट ओवरऑल कम रही है फर्स्ट क्वार्टर में। सर एक और न्यूज़ का रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप लोगों के कोई ड्यूज 58 बिलियन के बाकी हैं जो न्यूज़ में आता है, बार-बार कभी-कभार आ जाता है, उसके बारे में सर आप कुछ बता सकें? हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो ड्यूज हैं जो गवर्नमेंट ने हमें देने हैं दैट इज अराउंड 57 बिलियन रुपीस, जो गवर्नमेंट ने हमसे ले रहे हैं दैट इज अराउंड 47 बिलियन। तो देयर इज अ डेल्टा ऑफ 10 बिलियन रुपीस। तो वो आप पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहे हैं, दैट इज द ओनली ड्यूज व्हिच इज ड्यू ऑन अस एंड दैट इज रिलेटेड टू 2023 से पहले के। और उसके ऊपर अंडर ब्राउनफील्ड रिफाइनिंग पॉलिसी एक सेटलमेंट डीड गवर्नमेंट के साथ होनी है जो कि ECC ने अप्रूव कर दी है और अब वो किसी भी वक्त साइन हो जाएगी। ऑन द रिसीवेबल गवर्नमेंट रिसीवेबल अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है, बट SIFC हैज कमिटेड के दे विल फैसिलिटेट अस इन दैट। सो दैट इज सर आपका जो $1 बिलियन के जो एक्सपेंशन या अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है सर, उसके बारे में क्या अपडेट है? और सेकेंडली आपने पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि स्पॉन्सर विल अरेंज ऑल एक्सपेंशन अमाउंट, तो इसके बारे में फर्दर क्लियरिटी दे दी कि सारा स्पॉन्सर ही अरेंज करेगा इसके अंदर में? देखिए उसका मैंने मेजर पोर्शन कहा था कि स्पॉन्सर इज गोइंग टू अरेंज फाइनेंसिंग फॉर दैट। जहां तक अभी आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा तो लास्ट ईयर भी हमने बात की थी कि वी हैव ऑलरेडी कमेंस्ड आवर अपग्रेड प्रोजेक्ट। सो हमारा अपग्रेड प्रोजेक्ट 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज इज टू कन्वर्ट आवर प्रोडक्ट्स इनटू यूरो 5, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम काफी एडवांस स्टेजेस के ऊपर है। सेकेंड फेज इज कि हम फ्यूल ऑयल क्रैकिंग करेंगे और फ्यूल ऑयल की प्रोडक्शन को बिल्कुल मिनिमल पे लेके आएंगे एंड उतनी ही फ्यूल ऑयल की कंजम्पशन रह जाएगी और प्रोडक्शन रह जाएगी जितनी हमें अपनी ओन कंजम्पशन के लिए चाहिए होगी। तीसरा फेज है कैपेसिटी एनहांसमेंट, जो इस तरह से हमारा अपग्रेड प्रोजेक्ट 3 फेज में डिवाइडेड। उसका फर्स्ट फेज पे तो काफी तेजी से काम चल रहा है एंड यू विल हियर समथिंग गुड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज काफी एडवांस स्टेजेस में है। सो दिस इज द अपडेट। सर इसके अंदर में मैंने आपके एक दफा विजिट किया था सिनर्जी को के अंदर में, थोड़े अर्से पहले की बात है, तो आप लोगों ने कहा था कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी मशीनरी वगैरह आपके वहाँ पड़ी हुई है, तो इसके बारे में कुछ अपडेट दे देंगे कि ऐसा है? लेकिन एक दफा आप लोगों ने सर आपके हमारे रिफाइनरी साइट बिल्कुल गलत जी साइट पे ही बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। ओके, वो एरोमेटिक्स का प्लांट है केमिकल्स का, जो कि एक छठी कंपनी जो हम 5 और 6 कंपनीज की जो बात कर रहे थे वो केमिकल प्लांट है।
ओके ओके। और सर आपका आइसोलेशन का प्लांट के बारे में क्या अपडेट है कि वो नेफ्टा आप उसको एमएस बना रहे हैं कि नेफ्टा की प्राइस अच्छी है तो वो सेल कर रहे हैं नेफ्टा को या? नेफ्टा हम कभी भी सेल नहीं करते, नेफ्टा हम हमेशा कन्वर्ट करते हैं। बहुत हार्डली कोई इंडस्ट्री को चाहिए होता है तो हम बेचते हैं, अदरवाइज नेफ्टा को हम टोटली कन्वर्ट करते हैं इनटू गैसोलीन। बल्कि अब तो हम दूसरी रिफाइनरीज को भी करके दे रहे हैं। किसी को सवाल पूछना है तो पूछ लें सर, मेरे पास है लेकिन मैं चाहता हूँ किसी और को चांस मिले। Yes, I have a question, sir. Can you hear me? Yeah, what's your name? Moise? Sir, this is Abdul Moise From? Abdul Moise from Maple Leaf Capital. Okay. Sir, my question, वैसे एक पहले क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग थ्रूपुट, तो मेरा उसमें थोड़ा ऐड ऑन करना मैंने कि कैन यू प्लीज टेल अस कि आप क्या थ्रूपुट टारगेट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया। हम टारगेट कर रहे हैं अराउंड 60,000 बैरल्स पर डे। ओके ओके बट ओके जो इम्पोर्टेंट चीज है मोहित साहब अंडरस्टैंड करने की, दैट इज के थ्रूपुट बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, बट उसके साथ Yes. जो फिर एक चैलेंज आता है दैट इज आई एम श्योर यू Yes. वुड नो कि मार्केटिंग में बहुत दफा डिस्काउंट्स भी ऑफर हो रहे होते हैं हेवी, तो उससे बड़ा चैलेंज है दैट इज सेल्स। और दूसरा ये कि yes. फ्यूल ऑयल उसको भी हैंडल करना होता है, तो जो थ्रूपुट हम प्लान कर रहे हैं वो इन चीजों को देख के ही करना है। बेसिकली अगर एक जुमले में इसको कंक्लूड किया जाए तो थ्रूपुट उतनी इंक्रीज करेंगे जो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। Yes, बाकी yes, सारे sir. फैक्टर्स हैं। Yes, understandable. Sir, मैंने एक क्वेश्चन We आपसे have पूछना that था। flexibility Yes. to play around with the throughput. I mean, we can have optimal level, we can reduce it. Lot of refineries they don't have that. Yes, sir. Understandable. Sir, मेरा second question था regarding IFEM. 1.87 आपको obviously I think सारी refineries को मिल रहा है, तो आप लोगों को भी hopefully मिल गया होगा 1.87 रुपीस। बट मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि ये आजकल रूमर्स चल रहे हैं, न्यूज में भी आया था पिछले दिनों कि ये गवर्नमेंट से आपकी नेगोशिएशन चल रही है टू एनहांस दिस होल 1.87 रुपीस वाला जो आपके साथ नेगोशिएशन हुई है, वो कह रहे हैं कि ये फॉर 3-4 इयर्स आगे हम बढ़ा देंगे ताकि आपकी सेल टैक्स रिकवरी हो जाए। मैंने ये कंफर्म करना था कि इज इट सो, कोई ऐसी आपकी बात चल रही है गवर्नमेंट से? देखिए, सेल्स टैक्स की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो तो एक्चुअल बेसिस पे होंगी। तो 1.87 गवर्नमेंट ने दिया जरूर है, बट वो अभी तक रिफाइनरीज का स्टिल लिम्बो में है। ओएमसीज को मिलना शुरू हो गया है, रिफाइनरीज को वो अभी तक मिलना शुरू हो गया थ्रू पीएसओ आ रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं मिल रहा, थ्रू पीएसओ आ रहा है। सो वो 1.87 के ऊपर हमारा प्रिंसिपल स्टांस इज नॉट 1.87। हमारा स्टांस है कि उसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। उसका मैकेनिज्म आईफीएम ही होगा या गवर्नमेंट प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स टैक्स लगाएगी। सो हमारी उनसे रिक्वेस्ट ये थी गवर्नमेंट से, जो तमाम रिफाइनरीज ने इकट्ठा अपनी जॉइंट लेटर में भी कही थी कि इसी अगर तो प्रोडक्ट के ऊपर वो सेल्स टैक्स नहीं लगा रहे तो फिर यही मैकेनिज्म कंटिन्यू करें। सेल्स टैक्स शुडंट बिकम अ कॉस्ट फॉर द रिफाइनरीज। दिस वाज द मेन क्रक्स। ओके सर, अंडरस्टैंडेबल। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्रेट के ऑल्दो आपने पहले थोड़ा जवाब दे दिया था, लेकिन सर मुझे थोड़ा क्लैरिटी आप दे सकते हैं कि कितना फ्रेट लगता है तो इन हाउस क्रूड, चाहे वो WTI हो, चाहे अगर आप जैसे आपने वैसे अफ्रीकन मंगवाया चाहे वो हो, या अगर सऊदीया से भी आ रहा है तो कितना फ्रेट लगता है, क्या उसका इम्पैक्ट आता है? सर फ्रेट जो है वो डिफरेंट, फ्रेट कैन नॉट बी फ्लैट फॉर एवरी प्लेस। So if you're getting something from Fujairah, the freight is different. If you're getting something from Houston, the freight is different. So when we do our calculations, so हम तो delivered cost देखते हैं ना, हम GRM calculation में we look at the delivered cost. So delivered cost की basis के ऊपर GRM calculate होता है, जिसमें freight inclusive होता है। Okay sir, understandable. Thank you so much. Any other question? सर नहीं, आई वांट टू आस्क दैट सर कि इसका मतलब आप लोगों ने जो हैज करवाया है क्रूड ऑयल को, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री गेन और लॉसेस आप लोगों को नहीं होंगे? नहीं जी, इन्वेंट्री सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर अगर क्योंकि हम करते ये हैं कि क्रूड की प्राइस को प्रोसेसिंग मंथ और सेलिंग मंथ पे, आइडियली प्रोसेसिंग एंड सेलिंग पीरियड के अंदर
प्राइसिंग हेज करते हैं, तो उसकी वजह से हमें, बिल्कुल आपकी बात सही है, इन्वेंट्री गेन लॉस का इतना इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड इन्वेंट्री है जो कि अनसोल्ड है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ओके। और सर इसके अलावा रिफाइनरी आपकी दो रिफाइनरी है, एक छोटी एक बड़ी है, तो मोस्टली आप कौन सी वाली रिफाइनरी यूज कर रहे होते हैं आजकल? बड़ी रिफाइनरी चलाते हैं, छोटी की जरूरत होती तो वो भी चलाते हैं। ओके। तो सर हम यही एज्यूम करें कि 30 to 35% थ्रूपुट पे आपका इस वक्त बेस्ट यील्ड बन रही है डीजल की, और एमएस की और एफओ सबसे कम बन रहा है। देखिए, उसकी थ्रूपुट का यील्ड से ताल्लुक नहीं है ना कि 35% है, वो तो क्रूड टाइप्स है ना। अगर आप हेवी क्रूड ला रहे हैं तो उसके ऊपर फ्यूल ज्यादा बनेगा ही बनेगा। अगर डीजल की एक सर्टेन उसके अंदर प्रोडक्शन हो सकती है, वही होगी। So that's why our strategy for this year is to get lighter crudes so that fuel oil की production जो है वो कम से कम हो, and throughput उसी accordingly जो इसी प्लान के मुताबिक हमने 30-35% आपको कही है, 60,000 बैरल्स तकरीबन जो हमने बजट की हुई। तो सर मैं आपकी बात से ये समझा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आप देख रहे होते हैं ताकि 60,000 बैरल्स पे ही आप इसको रखें, इसको लाख बैरल तक आप ना लेकर जाएं। देखिए, लाख बैरल पे थ्रूपुट ले जाने का मतलब खाली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट। चले आज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को आप इग्नोर करें, आपके यहाँ 1 लाख बैरल की थ्रूपुट पे जाना है, उसके बाद जो 1 लाख बैरल प्रोड्यूस की थ्रूपुट पे चलाने के बाद उसकी जो प्रोडक्शन है उसको टाइमली बेचना। यहाँ पे कंपनीज को इंपोर्ट की परमिशन मिलती है प्रोडक्ट की, डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉ ऑफ द लैंड डजंट अलाउ दैट कि पहले लोकल प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में बिकेगी, बट उसके बाद इंपोर्ट अलाउ होगी। बट स्टिल दे आर कंपनीज जो डिमांड ओवरस्टेट करके जो है वो इंपोर्ट की परमिशन ले लेती हैं। फिर देन देयर इज पीएसओ कॉन्स्टेंटली इंपोर्ट कर रहा होता है बिकॉज दे हैव अ G2G एग्रीमेंट, दे ऑलवेज हैव दैट एक्सक्यूज। सो एक तरफ प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करे जाएं आप और रिफाइनरीज के पास एक्सेस प्रोडक्ट पड़ा हुआ हो, तो दिस इज नॉट अ एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ द ओवरऑल सप्लाई चेन ऑफ ऑयल। सो इसलिए ये सब फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री एक्सेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज एंड बेसिकली इन्वेंट्री लॉस है। ओके सर। और सर ये जो डीमर्जर है 6 कंपनीज में हो रहा है, इसका मकसद क्या है एक्चुअली? इसका मकसद तो पहले भी एक्सप्लेन किया था, बहुत दफा एक्सप्लेन किया था। अभी एक लिस्टेड कंपनी में 6 बिजनेसेस हैं। सो when you want to divest or when you want to bring in a new partner, let's say एक पार्टनर में कोई आना चाहता है आपके साथ एज पार्टनर, but they are interested in like logistics, like SBM में interested है या oil marketing में interested है या छोटी रिफाइनरी में interested है या बड़ी रिफाइनरी में interested है, तो वो इस स्ट्रक्चर के अंदर उसके पास विंडो नहीं है कि वो आ जाए। When we have separate companies, then we have the opportunity कि उस स्पेसिफिक इन्वेस्टर या उस स्पेसिफिक पार्टनर आप उस कंपनी में लेके आ जाएं जहां उनका इंटरेस्ट। ओके। तो सर ये जब आप मिसाल के तौर पे एक मिसाल बता रहा हूँ कि अगर आप छोटी रिफाइनरी सेल करते हैं, आप बड़ी अपने पास रख लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो छोटी रिफाइनरी के साथ आप आइसोमराइजेशन का प्लांट भी उनको देंगे कि आप अपने पास ही रखेंगे? आइसोमराइजेशन का प्लांट छोटी रिफाइनरी का पार्ट नहीं है, दैट इज बीइंग मर्ज्ड टू द बिग रिफाइनरी। ओके ये इसकी स्कीम का पार्ट है। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? ये जो उस पे आ रहे हैं साइड में, आई थिंक ऑल आर आंसर। किसी और का कोई सवाल है तो बता दें, वरना आई बिलीव अब कोई सवाल नहीं है, so should we call it off? Sir, thank you everybody for attending this corporate briefing session.
We look forward to have you in another session again soon. Thank you. Thank you. Thank you very much.